Do we start now, or do we wait for another 3-4 minutes? Still, students are joining. We'll wait Okay. for next 2 minutes. Sure, sure. Let's wait for 2 minutes time. Okay. So, a very good afternoon, students. Greetings of the day from the Buddha Institute Innovation Council. On the behalf of Buddha Institute Council, we are organizing a webinar on the topic My Successful Story by a Successful Entrepreneur. He will be telling you all the do's and don'ts which we have to follow while we. So, may I request Mr. Sachidanand Chaturvedi sir to give a warm welcome to our speaker, Mr. Manan Vashisht, and also to tell the students about his brief profile. Thank you, Ankur. Welcome, sir. First of all, from core of my heart, I thank you again for your consent and for your time in the busy schedule, guys. The man whom we are going to hear is a very dynamic personality, which I know. Following him, I learned him many things. Him from his profile at the various networking site. I request you all to follow it up firstly. And now, regarding his experience, um, he is a MBA from Southern Methodist University. Then, starting his career as a project lead in a well-known US bank, he moved towards the assistant manager in Ops, then had a collection and manager business development. Then he became a director in IDC Technologies. Then after that, with vast experience, he became a DGM AVP in international business development in Religare Technologies. After that, sir was vice president business development at RNF Technologies.
Then Sir had a global business in wide net technologies. After that, Sir, in 2015, Sir came in his entrepreneurial skill with vast of experience and co-founded and was CEO of Ogre Logic. Now, Sir is heading a new firm, named as a rebranding gurus. Maybe you people got an opportunity for placement as well in future. So I request you all to please listen him, have a questions, and understand from his vast experience what really the life really is all about. And again, thank you, Manan sir, for coming on the board for being lads. Thank you, sir. Thank you for coming, and the platform is all yours. All right. Happy Saturday, everybody. Good to see people on Saturday. I would request everybody to put yourself on mute so that we do not have any background noise. And since, we want to listen to everybody, so I think it'll be a good idea for everybody to put yourself on mute. So this session is going to be more in Hindi and English both, since I feel मातृभाषा का प्रयोग भी बहुत ज़रूरी है. तो मेरा नाम मनन वशिष्ठ है, और जैसा सचिदानंद ने बताया कि मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, so thank you very much Sachidanand for the respect that you've shown, and you and I are friends for so long, and I've had an opportunity to meet up with you and your team in Gorakhpur University, so yeah, very quickly, I have an experience of almost 20 years now, जिसमें से पहले के 11 साल जो हैं, I worked in jobs in India and in the US, in call centers, in BPOs, in technology companies, and very quickly started with the basics. Like I'm very very happy to see everybody before time. So ये पहला बेसिक है लाइफ को आगे लेके जाने का, कि आप कहीं भी समय से पहले पहुंचें और प्रिपरेशन करें, और प्रिपरेशन करके समय पे काम शुरू करें, तो आधा काम आपका वहीं पे ही खत्म हो जाता है. Well begin is half done, as they say. So it's very important to be punctual, be there on time, and people like Sachidanand, people like myself, the growth happens when you reach on any place on time first. So the journey has been very interesting. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो यही है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपका पैशन किस चीज में है, आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं. और आप सब लोग जिस स्टेज पे अपनी लाइफ की हैं, अब डिसीजन हो जाना चाहिए दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ. And I think that's where the whole journey starts from. It's very important to know ki what are you good at, what you want to become good at, what is it that you're interested in. छोटा सा कोट है जो बहुत important कोट भी है, that when your passion becomes your profession, you scale the heights, which is amazing. अगर सचिन तेंदुलकर फुटबॉल खेलते होते तो शायद वो फुटबॉल के गॉड ना बन पाते, क्योंकि क्रिकेट ही उनका पैशन था और क्रिकेट ही उनका प्रोफेशन बना. सिमिलरली फ्रॉम माय जर्नी, I had a big passion in sales, in business development, in customer care, and then technology happened in between. तो टेक्नोलॉजी साथ में चलता रहा, और बहुत important था कि we continue with the passion. So I continued with the passion of business development and sales, marketing. तो starting यहाँ से है. आप सब लोगों को पहले ये मालूम होना पड़ेगा कि what is it that you want. तो डिस्कशन अपने फैमिली से, अपने प्रोफेसर से, अपने फ्रेंड से और अपने मेंटोर से ज़रूर होना चाहिए. बट एंड ऑफ द डे ये डिसीजन आपका अपना है. 10th के बाद 11th में साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है या आर्ट्स लेनी है, हमारे पेरेंट्स का उसमें बहुत इन्फ्लुएंस होता है. 12th के बाद
बीटेक करना है, बीबीए करना है या बीकॉम करना है, उसमें भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस हो सकता है और होता भी है। बट एट द एंड ऑफ द डे ग्रेजुएशन करते करते ये क्लियर हो जाना बहुत जरूरी है कि आप क्या करना चाहते हो, बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट फेज वहां से शुरू होता है। बहुत लोग कुछ और करते हैं ग्रेजुएशन में, लेकिन उनका इंटरेस्ट कहीं और होता है। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो इंजीनियरिंग के लिए गए, उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, अपनी स्टडीज कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद वो एनिमल फोटोग्राफी या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में चले गए, एंड ही इज डूइंग ग्रेट देयर, बहुत अच्छा कर रहे हैं वहां पे वो। तो थोड़ा मुश्किल भी होता है कि ये अपने लिए डिसाइड कर पाना कि आप क्या करना चाहते हो, लेकिन अगर ये डिसीजन हो जाए तो फिर आगे की लाइफ आसान हो जाती है। तो ये एक बेसिक स्टार्ट है। बीइंग पंक्चुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम ऑलवेज देयर बिफोर टाइम फॉर एनी मीटिंग दैट आई हैव टू गो। 15 मिनट पहले पहुंच जाने से बहुत सारी जो नुआंसेस हैं वो हल हो जाती हैं। आप रेडी हो जाते हो, थोड़ा सा होमवर्क कर लेते हो, एंड देन यू आर बिफोर टाइम and you can carry on with your meetings. Um, Similarly, as soon as that's done, फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना रोल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट समझें। आप समझें कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं। और हर इंसान को अपने स्ट्रेंथ्स बहुत अच्छे से पता होते हैं, वीकनेस कई बार नहीं पता होते, और उसी फॉर दैट योर पेरेंट्स, योर प्रोफेसर्स, दे कम इन टू प्ले। बिकॉज आपके जो प्रोफेसर्स हैं, आपके जो मेंटोर्स हैं, पेरेंट्स हैं, दे नो यू, बिकॉज they've gone through your age, they've gone through your journey, they've seen the journey, they've seen multiple journeys like you. तो बहुत सारे लोगों ने जर्नीज जो हैं वो कर ली होती हैं, तो फिर उसके बाद आसान हो जाता है, लेकिन उनको मानना पड़ेगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आप मानते हैं उनकी बात को फॉलो करें। हम सबका आज भी 20 साल काम करने के बाद आज भी मैं अपने मेंटोर की बात बहुत सुनता हूँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंटोर की बात सुनी जाए, ट्रस्ट किया जाए उन पे। इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। तो फिर जब एक ट्रस्ट वर्दी मेंटोर मेंटीशिप बन जाता है, चाहे वो आपके फादर हो, चाहे वो आपके मदर हो, चाहे वो आपके ब्रदर हो बड़े, बट इट हैज टू बी समबडी जिनका एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा हो, जिनकी नॉलेज आपसे ज्यादा हो, जो लाइफ को आपसे थोड़ा ज्यादा देख चुके हो। वहां से फिर जब आपने अपना एक पैशन डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है, आपने अपना एक मेंटोर डिसाइड कर लिया, आपने अपने जो जिनसे आप सीखते हैं वो डिसाइड कर लिया, उसके बाद जर्नी एक्चुअल में शुरू होती है। दैट्स व्हेन द एक्चुअल जर्नी ऑफ ग्रोथ स्टार्ट्स। वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने ग्रेजुएशन किया और मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स किया, और उसके बाद मैंने जीएनआईटी का एक कोर्स होता था 3 साल का, वो किया। मैंने विंडोज आर्किटेक्चर किया। मैंने फिर एमसीएसडी किया, एक कोर्स होता था एमसीएसडी, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डेवलपर और इंजीनियर समथिंग, वो किया मैंने। और तब भी मैं क्लियर नहीं था कि मुझे क्या करना है। तो मैंने नेशनल लेवल पे डांस कॉम्पिटिशन्स जीते। थोड़ा सा मैंने मॉडलिंग में भी अपना हाथ आजमाया। मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था, मैंने क्रिकेट बहुत अच्छा खेला। टेबल टेनिस में मैं नेशनल चैंपियन था। बट आई वाज स्टिल नॉट वेरी श्योर कि मैं क्या करना चाहता हूँ। देन एट द एज ऑफ 22 मैंने जो है आई वेंट एंड जॉइन माय फादर्स बिजनेस ऑल्सो। तो मैंने 6 महीने के लिए वो भी किया, बट दैट ऑल्सो वॉज नॉट समथिंग दैट आई वॉज पैशनेट अबाउट। दैट्स व्हेन कॉल सेंटर्स हैपन इन माय लाइफ। मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक था, और मैं चाहता था कि मैं देखता था कि लोग जो है कंपनी के पैसे पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो बहुत शौक था मुझे। तो देन आई रिसर्च, और मैंने देखा कि कहाँ जॉब मिल सकती है, एंड देन आई जॉइन कॉल सेंटर्स। एंड आफ्टर आई जॉइन कॉल सेंटर्स फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बिकॉज मैं बहुत कुछ कर चुका था, एंड 21-22 की एज हो रही थी। इट वॉज इंपॉर्टेंट, बट दैट वॉज वन थिंग दैट आई गॉट पैशनेट अबाउट, सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट, बिजनेस डेवलपमेंट। एंड देन व्हेन बिजनेस डेवलपमेंट स्टार्टेड हैपनिंग, बस देन इट बिकेम माय ओनली चॉइस।
Another saying is that when you keep multiple choices, you're always confused. जब आप एक चॉइस रखते हैं अपने पास, तो फिर वो आपकी अल्टीमेट चॉइस होती है, फिर उसमें आपको सक्सेस लेना ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक चॉइस बनाए। मुझे बनाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उसके बाद बहुत फास्ट तरक्की हुई, बहुत फास्ट ग्रोथ हुई। आप लोग यंग हैं, आप लोग अभी से अपनी चॉइस बना सकते हैं, एंड देन यू यू नीड टू गो फॉर इट। मुझे मेरे मेंटोर भी जो है वो 22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में मिले, और 24.5-25 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। तो इट वॉज वेरी क्विक। सो देन आई गॉट इन टू द कॉल सेंटर्स। मैंने वहां पे काम किया। पहले ही साल में मैं एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बना, 1000 लोग थे कंपनी में। फिर उसके बाद आई स्विच द जॉब इन 2-3 years। वहां पे स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक जॉब कर रहे हैं तो स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, जहाँ पे बहुत सारे मीडिया हाउसेस में आई हैव गिवन इंटरव्यूज, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आपको एक जॉब करें, तो उस जॉब के अंदर एक प्रमोशन सेम कंपनी में लेनी बहुत आवश्यक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी प्रमोटेड इन दैट वन जॉब, इन दैट वन कंपनी, बिकॉज दैट इज द रियल ग्रोथ। एक जॉब करके फिर दूसरी जॉब में चले जाना, वहां पे हॉप कर लेना, वहां ग्रोथ ले लेना, फिर एक और जॉब में जाना, वहां, नो, दैट्स नॉट राइट। यू नो, you don't do your college 1 year in one college, second year in another college, but the students who unfortunately don't pass or who have low marks, they hop colleges. Similarly, in jobs, you need to be very stable, you need to be very confident, and then you need to perform to take one promotion. तो यही मेरे मेंटोर ने सिखाया कि एक जॉब में, पहली जॉब में प्रमोशन लीजिए, एक काम को ठीक कीजिए, एंड देन इफ यू हैव प्रमोशंस, देन द अदर कंपनीज विल कॉल यू देमसेल्व्स। लाइक मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी आता हूँ बिकॉज सच्चिदानंद के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। वो स्टार्ट था, लेकिन अब मैं स्टूडेंट्स को पिक करता हूँ। In Ogre Logic also, in my previous company, we had a lot of people, and hopefully you'll see my face in person in coming months also, to hire people in business development, in technology, in marketing, and all of that. And I've done one session with your college already. So stable होना बहुत जरूरी है, मेंटोर का होना बहुत जरूरी है, टाइमिंग सही होना बहुत जरूरी है, और अपने पैशन को फॉलो करना वो बहुत जरूरी है। अभी यहां से जर्नी आगे बढ़नी शुरू हुई। देन आई वर्कड इन कॉल सेंटर्स, देन आई वर्कड इन बेटर कॉल सेंटर्स, फिर मैं बेटर कॉल सेंटर्स में गया, और 2003 से लेकर 2008-9 तक आते आते मैं अमेरिका 7 बार जा चुका था। फिर सेल्स से आई वेंट इनटू बिजनेस डेवलपमेंट, क्योंकि ट्रांजिशन है। जैसे आप अपने कॉलेज में बीटेक करते हैं तो कुछ जनरल होता है, फिर स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं, देन यू इंजीनियरिंग करनी है तो कोई मैकेनिकल में जाते हैं, कोई केमिकल में, कोई इलेक्ट्रिकल में, कोई कंप्यूटर साइंस में। फिर वहां से एक लाइन पकड़ी जो कि बिजनेस डेवलपमेंट की लाइन थी, सेल्स से। सेल्स इज अ वाइडर पर्सपेक्टिव। फिर बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग पकड़ा। ओके, तो फिर उसके बाद और ट्रैवल किया, बड़े बड़े बिजनेसेस क्लोज करने शुरू किए, अगेन विद द हेल्प ऑफ अ ग्रेट टीम। सो पांचवा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीइंग अ टीम मेंबर। यू नीड टू नो कि आप टीम्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं। इसीलिए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं कॉलेज के अंदर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं या ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उनको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज वहां से आपका एक ट्रू कैरेक्टर, आपका एक ट्रू टीम मेंबरशिप, वहां से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ योर लाइफ कम्स आउट, कि आप कितने कोऑपरेटिव हैं, working with easy people, tough people, and that's also super important, because बहुत it's imperative, because हम एक सोशल एनिमल हैं। तो सोशल लोगों के साथ हम कैसा बिहेव करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कितना इंटरेक्ट करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, कितना थोड़ा थोड़ा डिप्लोमेटिक रहते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर वो होना शुरू हुआ, तो टीम बढ़ने शुरू हुए। जब टीम बढ़ने शुरू हुए तो फिर और बड़ा काम आना शुरू हुआ। लेकिन 2010 तक आते आते मार्केट रिसर्च किया तो समझ में आया कि कॉल सेंटर्स या बीपीओज के अंदर आने वाले समय में एक स्टेगनेंसी आ जाएगी, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब नाउ आई नीड टू लुक एट अदर ऑप्शंस। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
अपने करियर का कि रिसर्च साथ में करते रहना है, मार्केट में क्या चल रहा है वो देखते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है while you're working, especially when you're in a private business, private job. That's when I realized that digital marketing, website development, mobile application, they were all coming up in a big way, in a very big way. तो मैं चाहता तो मैं कॉल सेंटर्स का बिजनेस 2010 से कर सकता था क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस हो गया था, लेकिन नहीं, आई डिड नॉट डू द बिजनेस. आई स्टिल ट्राइड कि मैं थोड़ा सा 1 साल 1.5 साल और जॉब करूं. तो मैंने कंपनी ज्वाइन किया एज अ वाइस प्रेसिडेंट, डिजिटल मार्केटिंग सीखा, वेब डेवलपमेंट का अंडरस्टैंडिंग लिया, उसका एक नया पैराडाइम बनाया. तो कॉल सेंटर इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को मर्ज किया मैंने, और फिर वो अप्लाई किया उस कंपनी में. एंड दैट कंपनी, वो कंपनी आज 300 करोड़ रुपए की कंपनी है. द फर्स्ट कंपनी दैट आई जॉइंड, ह्यूज कंपनी. एंड even today they follow the policies and the processes that I started, which is great. So got a lot of recognition there. That's when I decided that अब टाइम आ गया है कि जितना मैंने लर्न किया वो लोगों में बांटा जाए by the means of starting my own company. That's why in 2015, June 29th is when I started my own company. और 2 लोगों से वो कंपनी स्टार्ट हुई, और लास्ट ईयर मैंने उस कंपनी में अपने स्टेक्स बेचे एंड आई बिकेम अ मर्जर्स एंड एक्विजिशन स्पेशलिस्ट. लेकिन उन 5 साल और 11 महीनों में हमने उस कंपनी को के रेवेन्यूज को मल्टी मिलियन डॉलर्स किया. कंपनी हैज रीच्ड अप टू 65-70 employees and a lot of people, more than 1,000 projects. That's by that time ये कंपनी रीब्रांड गुरुज, मैंने I bought this company. तो मैंने कंपनी खरीदी because it was not a well running company. ये शेरिडन वायोमिंग यूएस में एक जगह है, वहां की कंपनी है, रजिस्टर्ड 2017 से थी. इसको मैंने 2019 में खरीदा और अपनी कोर टीम को हम लोग साथ लेके चले. और फिर इस कंपनी को भी पिछले 8 महीने में 9 महीने में जब से मैं फुल टाइम आया हूं, तब से हमने इस कंपनी को भी, वी आर नाउ अ $1 million कंपनी. हमने इस कंपनी को भी, वी आर रीचिंग ऑलमोस्ट, आई एम सॉरी, नॉट $1 million कंपनी, हम लोग वी आर टचिंग ऑलमोस्ट $500,000 बाय द एंड ऑफ February. इस कंपनी के अंदर भी हम लोगों ने स्टार्ट किया विद ओनली 4 people एंड नाउ इट्स अ टीम ऑफ 17 people. और बहुत स्पीड से हम लोग ग्रो कर रहे हैं. अभी सचिदानंद से हमने कुछ रिज्यूमेस लिए, उनको फोन किए गए हैं, उनसे बात चल रही है. आपकी यूनिवर्सिटी के लोग हैं जिनको हम हायर करना चाहते हैं. तो अगेन जर्नी जो है वो पैशन की है. अभी भी मैं आई स्टिल मेक श्योर कि मैं अपनी टीम को मोटिवेट करूं. अगर आप हमारा रीब्रांड गुरुज, हमारी कंपनी का नाम है, आई रिपीट, रीब्रांड गुरुज, आप उसके लिंक्डइन पेज पे जाइए, फेसबुक पेज पे जाइए, इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, तो आप देखेंगे हम लोगों को कैसे प्रमोट कर रहे हैं. Every day, every month, we are training people like crazy. We are motivating people by giving them incentives, big gifts, day shifts, 9 shifts, working from home. तो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि आगे बढ़ने के लिए amalgamation of all these things are very important. You have to be very, very focused in the job, in the demand, in the profile, in the profession that you want to go at. And that's why I've been called. I think I want to thank university for Gira for acknowledging this. And I know they could have done with so many people, so many massive companies come in and do the placements with you guys, but I am the first or the second one that you guys have chosen. And I think it is because of the passion that I hold. मैंने 37 ईयर्स की एज में अपनी पहली कंपनी चालू की, तो 100 में से 95 लोगों ने मुझे बोला कि नहीं, आप इतना अच्छा जॉब कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, द होल कंपनी रिपोर्ट्स टू यू, तो व्हाई? एंड आई सेड इट इज बिकॉज ऑफ माय पैशन. और अब मैंने 42 की एज में दूसरी कंपनी को एक्वायर करके इसको शुरू किया, तो सेम क्वेश्चंस उठे, लेकिन इस बार कम लोग थे जिन्होंने व्हाई बोला, ज्यादा लोग थे जिन्होंने बोला व्हाई नॉट, डू इट. And that is why the growth, the passion,
और बहुत इंपॉर्टेंट जो एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे चलना, एक अच्छी टीम के साथ चलना और नॉन स्टॉप वर्क। देखिए सैटरडे को भी मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। मैं सुबह 7:30 बजे ऑफिस से वापस आया था और उसके बावजूद ठीक 10:30 बजे उठ के, 11 बजे उठ के मैंने थोड़ा काम किया, थोड़ा मेडिटेशन किया, थोड़ी देर अपने पेरेंट्स के साथ बैठा, एंड नाउ आई एम हियर विद यू। और इसके बाद हमारा क्रिकेट का प्रैक्टिस है और फिर शाम को एक डिनर है और फिर कल सुबह क्रिकेट का मैच है। तो व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज यू हैव टू कीप गोइंग, यू हैव टू कीप गोइंग। मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ, एक चैट पे मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मौका मिले तो ये आप ज़रूर देखिएगा, अगर आपको मौका लगे तो। मैं हल्का फुल्का म्यूज़िक भी करता हूँ एंड यू नो जो ये एक सॉन्ग मैंने निकाला, ये मेरी लाइफ की जर्नी 17 साल की। तो मैं और मेरा बेटा जो है वो पहले वर्ल्ड के फादर सन रैप डुओ भी हैं, हम रैप भी करते हैं। तो अगेन फॉलोइंग द पैशन, म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन द पैशन, तो वो भी मैं फॉलो करता हूँ। गाने लिखता भी हूँ, गाने करता भी हूँ, म्यूजिक भी बनाता हूँ। एंड अगेन पीपल लाइक, and I keep taking his name because I love him. People like Sachidanand, people like him, they motivate me कि सर और कीजिए, अच्छा करना है और साथ मिलके करते हैं। And then young people like you, college students like you, my son who's 16 years old, आप लोग मोटिवेट करते हैं हम जैसे लोगों को जो जो नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं या जाना चाहते हैं। तो बिकम एन एग्जाम्पल। दे से देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, इट्स फनी बट आप लोग यूज कर सकते हैं, डोंट चीट योर सेल्फ, ट्रीट योर सेल्फ। अपने आप को चीट मत कीजिए, अपने आप को ट्रीट कीजिए। And that's when, it all starts happening. Every morning when you wake up, now you're studying, every morning when you wake up, be a better version of you. कल से अच्छा होना है, और यही एक गोल है जो मैं आज भी लेके चलता हूँ। आई एम नॉट दैट गुड इन टॉकिंग, बट आई ट्राई टू टॉक, एंड धीरे 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 वो स्टेज फ्राइट और वो सब खत्म हो जाता है, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो इन लाइफ। तो मैं यही बोलूंगा कि जो भी करना है उसके लिए अपनी पूरी ताकत लगाइए, पूरी जान लगाइए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि ज्यादातर लोगों का नाम हम में से लास्ट नेम ना अंबानी है, ना टाटा है, ना बिरला है। तो जो भी हमारा लास्ट नेम है, हमें मेहनत करके, हमें जान लगा के, हमें पैशनेट होके और हमें शॉर्टकट ना लेते हुए आगे बढ़ना है। तो इसका मतलब मेहनत सबसे बड़ी कुंजी है सक्सेस की। और जब साथ में सही लोग मिलेंगे तो मेहनत के साथ यू विल बी स्मार्ट ऑल्सो। और जब अभी मैं देख रहा हूं कि कम से कम करीब 250 लोग जुड़े हुए हैं इस समय हमारे साथ, और 250 लोग इज अ बिग नंबर, इट्स अ बिग नंबर, एंड एवरीबडी इज, आप बिलीव नहीं करेंगे, इसमें से कुछ लोग हैं जो मेरी टीम के लोग भी जुड़े हुए हैं एंड वो मेरे साथ रहते हैं। मैं नाम लेना चाहूंगा गौरव गोयल का, जो क्रिकेट खेलते हैं मेरे साथ, और वो हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं बिकॉज दे वांट टू सी दैट वी आर व्हाट इज इट दैट brings us success. So I'm very very happy and I'm thankful that I've gotten this chance, and I hope कि ये जो पिछले 25 मिनट से I'm trying to talk, this would have made sense. सबने 1 2 3 पॉइंट्स तो जरूर लिए होंगे। और अगेन आप फॉलो किसी को भी कीजिए, डायरेक्शन और डिसीजन आप खुद लीजिए। गलत डिसीजन होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिसीजन खुद लीजिए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फेलियर। एनी फेलियर जिससे आप सीख सकें वो एक लर्निंग है, एंड लर्निंग इज द की टू गो अहेड। और सबके पास टैलेंट है, एवरीबडी हैज अ टैलेंट। आई स्टार्टेड माई रैपिंग करियर एट द एज ऑफ 41, एंड आई एम डूइंग दैट। कुछ गानों को हमारे मिलियन व्यूज भी मिले हैं, and so that's it, guys. I think um, that's been my journey, or hopefully I will come and meet up with some of you. I see some names. मनी का नाम मैं याद रखूंगा, बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, और बाकी और भी लोग हैं। स्पर्श हैज रेज्ड हिज हैंड्स, रीशम सिंह ने अपने हाथ ऊपर किए। तो आई थिंक
that's it. I would want कि ज़्यादा अच्छा तब होगा जब ये एक डायलॉग बने. तो अगर कोई questions हैं, if you have any questions, if you have any things that you want to ask me, please feel free, treat me like your friend. And then yeah, more importantly, if I can help anybody in even a small little growth, point of, you know, making focus, I'll be more than happy. So thank you very much, Sachidanand, and everybody for Thank you, coming sir. in here. So yeah, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Is there Thank you, any sir. query from any Thank you so student? much, sir, for such an inspirational and motivational. Thank you. So yeah, so if anybody has any questions, Thank you, sir. Sachidanand, thank you, thank you. So We if have you we have have any opened the questions, platform for the questionnaire round. If any of you have any question, any query, you can ask directly to sir. Just raise your hand and just ask the question. No, sir. Sir, it was indeed, it was a, it was a very good session. It was inspiring session actually. So thank you. all the students are motivated this time. So thank you so much for taking your time and just accepting our invitation on the behalf of Sachidanand Chaturvedi sir. So I am also thankful to Sachidanand Chaturvedi sir that Manan Vashisht sir has joined us. And thank you so much, sir. And we are looking for more session like this in coming future also, sir. Thank you so Anytime, much. anytime. And if anybody wants to talk in person Yes, sir. also, you can ask questions. Good afternoon, sir. So I want to ask something. Please. सर जैसे कि हम सब लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग आप अपना अपना नाम बताएंगे? आदित्य बात कर रहे हैं? यस सर, आदित्य कुमार शर्मा सर. हाँ आदित्य, बोलिए प्लीज. लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं, इनोवेटिव करना चाहते हैं, हमारे पास आइडियाज रहते हैं, हमें प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल रहता है, बट बैक में अगर देखें तो हमारे गार्जियन उस चीज को अलाउ नहीं करते हैं. तो हम ऐसे सिचुएशन को कैसे कोप अप करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन आदित्य, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. और सभी के साथ कभी ना कभी ये होता है, तो इट इज नॉट अनयूजुअल. बट इसको कोप अप करने के दो बहुत अच्छे तरीके हैं. पहला तरीका तो ये कि कोशिश कीजिए उनको कन्विंस करने की, गार्जियन को. उनको अब डिपेंड करता है कि आपको उनसे फाइनेंशियल बैकअप चाहिए कि नहीं. अगर फाइनेंशियल बैकअप चाहिए और फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, तो फिर उसके लिए you need to go out, go out to people who value you. ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स वैल्यू नहीं करते हैं, गार्जियंस वो सबसे इंपॉर्टेंट है दुनिया में. गार्जियंस आर दी मोस्ट, मतलब पेरेंट्स से ऊपर दुनिया में कुछ नहीं है, माँ से ऊपर कुछ. सो अगर वो बैकअप नहीं करते तो उनको समझाइए. अगर आपके कोई सीनियर हैं साथ में, उनसे मिलवाइए. क्योंकि देखिए, शायद उनको पता ही नहीं है कि जो आप करना चाह रहे हैं उसका विजन क्या है. वो तो आपको पता है, वो विजन उनको नहीं पता है. तो उनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा. और खुद नहीं हो सकता है तो किसी सीनियर को, किसी प्रोफेसर को, किसी ऐसे इंसान को जिसको वो वैल्यू करते हैं, उनसे बात करवाइए. लेकिन अगर वो भी नहीं होता है और आप फिर भी पैशनेट हैं, तो फिर देन यू हैव टू गो फॉर इट. यू हैव टू गो फॉर इट. आई ऑलवेज से कि अगर कोई आप पॉजिटिव काम करना चाह रहे हैं जिसमें आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो फिर एकला चलो. फिर चलना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी और जान लगानी पड़ेगी. उसके लिए मेहनत ज़्यादा होगी, शायद रिजेक्शंस आएंगे शुरू में. लेकिन मैंने जब कॉल सेंटर इंडस्ट्री ज्वाइन करी, तो मेरे पिताजी ने मुझसे 1.5 साल बात नहीं की. वो कहते हैं, रात की नौकरी क्या होती है भाई? आपका बिजनेस है, आप इतने पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो ये रात की नौकरी क्यों करनी है? लेकिन 1 साल तक मैंने मेहनत करके, अवार्ड जीतने के बाद, अमेरिका ट्रैवल बनाने के बाद, अपने फादर को जब कन्विंस किया, तो उसके बाद से मेरे फादर ने मेरी फैमिली के कम से कम 10 लोगों को जॉब लगवाई मेरे थ्रू. तो अब आदित्य, ईदर कन्विंस देम और गो फॉर इट एंड देन कन्विंस देम. कन्विंस तो देखो करना पड़ेगा दोस्त, और कई बार कन्विंस करना पड़ता है और कई बार कन्विंस वो हो जाते हैं. तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. Yes, sir, you have answered. Thank you, sir. Thanks a lot. वेलकम. Any more queries? No, sir. Sachidanand sir, are you there? Sachidanand sir? Yes, sir. Tell me.
Yes, sir. So can we please wind up? Hi, with due order of sir. No worries on. If anybody does not have any questions, Sachidanand, we are good. We can No, sir. Thank you, sir. absolutely wind up. No I problem. will request Sachinanand Chaturvedi sir for vote of thanks also. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Amit. Thank you. Sachinanand sir, please. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you for enlightening session. I think so. The student out here will be very much benefited and understand what how the really life rolls on. People only understand success. They don't know how the people hustle and be alone in the nights, then get the sunlight in the morning. So thank you for again reminding me, and I want just I'm lucky enough to have in touch with you. And I wish you always guide me. Thank you for your presence. No, no, thank you. Thank you so much, Sachidanand, for being so kind and so nice. And everybody, thank you very much for joining in here. मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, तो मैं कभी भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन चाहिए हो, कुछ भी इफ यू नीड एनीथिंग, आप मेरे को लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं. काफी लोग जो है पब्लिक स्पीकिंग से घबराते हैं, तो 1-to-1 भी कर सकते हैं. सच्चिदानंद को या प्लेसमेंट सेल बीआईटी को बात कर सकते हैं. बट अगेन गाइज, गो फॉर इट और अपने पैशन को फॉलो करो. Thank you. I'm getting some messages. Sparsh, thank you. Aditya, thank you. Everybody, thank you so much. And hopefully we will come and we'll meet up with each other. But Have a nice day. thank you so much. Thank you, sir. Okay. Thank you. Take care, everybody. Bye-bye. Bye, Thanks. sir. Bye-bye. Sudhir Shukla sir, are you there? Yes, sir. Can you please share the link and please tell the student what they have to Sure. do now? Sure. Students, I'm just sending a link in the chat box. Just go there and fill it. And after it all, e-certificate will be generated to your respective email IDs. I have shared. Just go there in the chat box.